Now we are heading towards a technical session by Dr. Gaurav Srivastava. Power Coating Technology, a 20th century innovation shaping 21st century surfaces. Before we call him on the stage, I would like to introduce him. So it is my distinct honor to introduce a visionary in the chemical sciences and a trailblazer in the paints, coatings and ink industry, Dr. Gaurav Chandra Srivastava. I would like everyone to give a round of applause for him. An acclimist of innovation and insight, Dr. Gaurav Chandra Srivastava is a name that resonates across the paint and coating industry. With over 18 years of hands-on experience, he has become a trusted authority in reaction mechanisms, physical chemistry, formulation development, and innovation strategy. A graduate synthesis chemist and a doctorate from prestigious IIT Kanpur, Dr. Srivastava has held senior technical and leadership roles across Allnex Resins, Vimal Intraday, Delta Specialities, and other leading firms, where he has not only driven growth but also mentored teams and educated clients on cutting-edge technologies. Beyond the lab and boardrooms, Dr. Srivastava is a prolific technical author and an invited guest lecturer known for demystifying complex chemistry for professionals and students alike. His passion for knowledge sharing and innovation makes him a true ambassador of scientific excellence. He is the driving force behind product breakthroughs, a trusted advisor to industry giants, and a guest lecturer who makes chemistry feels like storytelling. Trust me, that is something I have seen too. I am not from the chemistry background, but I always enjoy listening to Dr. Gaurav. Yes. He is the driving force behind product breakthroughs, whether it's powder coating epoxy systems or latest in polyura technology. Dr. Srivastava brings clarity, creativity, and charisma to every conversation. But what truly sets him apart is his passion for sharing knowledge. As a prolific technical author and educator, he is on a mission to elevate the industry, one formulation, one article, one inspired mind at a time. His portfolio includes numerous patents that reflect his inventive spirit and deep scientific insight. But Dr. Srivastava isn't just a creator, he's a communicator. He is the author of detailed technical articles and publications that elevate understanding and spark innovation across the chemical sciences. His publications that elevate understanding and spark innovation. Writing is known for its clarity, depth, and ability to turn complex concepts into actionable knowledge. Whether he's lecturing on advanced coating technology, consulting on raw material selection, or mentoring the next generation of chemists, Dr. Srivastava brings unmatched energy, expertise, and authenticity. Today, Dr. Srivastava continues to blend intellect with impact and chemistry with creativity. And we are honored to have him here to deliver a presentation that reflects his visionary approach to surface science, powder coating technology, a 20th century innovation shaping 21st century surfaces. So if you are ready to hear from a scientist who paints possibilities and formulates the future, please join me, giving a warm welcome to the one and only Dr. Gaurav Srivastava. Round of applause, everyone. We need some energy here. I cannot listen, everyone. सबकी तालियां नहीं सुनाई दे पा रही हैं हमें. Please, everyone, be alive, be energetic here. Hello. ਡਾਕਟਰ ਗੌਰਵ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ. ਪਾਊਡਰ ਕੋਟਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇਟਸ ਗਰੋਇੰਗ ਅਤੇ ਹੂ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਹਿਮ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਲਨੈਕਸ ਅੰਦਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਾਰਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ. ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾ ਦਿਓ. ਅੱਗੇ ਦੀ ਸੀਟਾਂ ਨਾ ਖਾਲੀ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਪਾਊਡਰ ਕੋਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਸਟੇਜ ਦੇ ਕੋਲ. ਇਹ ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ ਸੀਟਾਂ ਸਾਰੀ ਖਾਲੀ ਹੈਗੀਆਂ. ਪਲੀਜ਼ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ
जो पीछे गिरे सारे आगे आ जाओ सर। डॉक्टर साहब लाइट बंद करा देना यार। यहाँ पे हमने बहुत कुछ सीखा। यहाँ पे मुझे एक केमिस्ट्री को नॉर्मल भाषा में कैसे पेंट में कन्वर्ट किया जाता है वो सीखने को मिला। इस इंडस्ट्री में ऐसे ऐसे जादूगर हैं, स्पेशली पंजाब में ऐसे ऐसे जादूगर हैं जो अच्छे अच्छे केमिस्ट की केमिस्ट्री को भुला देते हैं, लेकिन भगवान के साथ सहारे मैं कम से कम यहाँ तक पहुँचा। और मैं आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लूँगा। देखिए, इंडस्ट्रियल कोटिंग एक ऐसा मार्केट है जिस मार्केट के अंदर बहुत डिमांड है, बहुत पोटेंशियल है। अगर आप पेंट इंडस्ट्री को मोटा मोटा दो हिस्सों में बांटना चाहें तो उसमें एक हिस्से को हम बोलते हैं डेकोरेटिव इंडस्ट्री, जो हमारा घरों की पेंटिंग और इन सारी चीज़ों से रिलेटेड सिस्टम है, जिसे वाटर बेस्ड पेंट भी हम लोग कहते हैं। और दूसरा है हमारा सॉल्वेंट बेस्ड पेंट सिस्टम, जिसको कि हम जानते हैं इंडस्ट्रियल कोटिंग के नाम से। सो आज की डेट में अगर देखा जाए तो सब कुछ इंडस्ट्री है। इवन जो डेकोरेटिव पेंट मैन्युफैक्चरिंग का जो या डेकोरेटिव पेंट है वो भी जहाँ पे अप्लाई होता है, दैट ऑल्सो हैज़ बिकम एन इंडस्ट्री, तो वो भी एक इंडस्ट्री। तो आजकल सब कुछ इंडस्ट्रियल पेंट जैसा हो गया है, बट स्टिल क्योंकि अलग अलग बाइंडर सिस्टम है, अलग अलग केमिस्ट्री है, अलग अलग चीज़ें हैं, तो हम अलग अलग तरीके से उनको अलग अलग इंड यूजेस में बांट देते हैं और उसके हिसाब से रेजिन केमिस्ट्री हो, इंड यूज का हो, कहाँ पे लगने वाला है, उसके हिसाब से हम पेंट्स को नाम देते रहते हैं। पाउडर कोटिंग इंडस्ट्री या पाउडर कोटिंग पेंट एक ऐसा नया आपके सामने एक टेक्नोलॉजी है। ये टेक्नोलॉजी आज से कोई रफली 50-60 साल पहले ही सामने आई है, और जितनी तेजी से इस टेक्नोलॉजी ने ग्रो किया है उतनी तेजी से किसी और कोटिंग इंडस्ट्री की टेक्नोलॉजी ने ग्रो नहीं किया है। जैसे जैसे हम इस प्रेजेंटेशन में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम देखेंगे कि 2005 में इंडस्ट्रियल कोटिंग के सेगमेंट में पाउडर कोटिंग का कितना हिस्सा था, और आज 2023 में जो डेटा मेरे पास अवेलेबल हो 2023 का है, सो वहाँ पर कितना हिस्सा हो गया, कितने % की ग्रोथ आ गई इस मार्केट के अंदर। सो ये प्रेजेंटेशन इंडस्ट्रियल कोटिंग के ऊपर बेस है, जिसका एक हिस्सा पाउडर कोटिंग है। सो मैंने ऐसा यहाँ पे टाइटल ये जो दिया, ये कैची लाइन है बेसिकली, इसका टेक्नोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये कैची लाइन इसलिए है, ये रियलिटी है कि ये टेक्नोलॉजी का पहला पेटेंट 1963 में फाइल हुआ था। सो आप सोचिए, जिस टेक्नोलॉजी का पेटेंट 1963 में फाइल हुआ हो और वो टेक्नोलॉजी आज जो 100 200 साल पुरानी टेक्नोलॉजीज हैं उनके सामने एज अ थ्रेट इंडस्ट्रियल कोटिंग में खड़ी हो गई है। सो उस टेक्नोलॉजी में कितना पोटेंशियल होगा, हमको उस टेक्नोलॉजी को थोड़ा और समझना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आगे आने वाले समय में हमारा इंटरेस्ट आज हो, या हो सकता है आगे आने वाले समय में आपका इंटरेस्ट इस टेक्नोलॉजी के अंदर हो। सो ये एक ब्रीफ लर्निंग है कि ये टेक्नोलॉजी क्या है, किस तरीके से जाना चाहिए, क्या क्या प्रोडक्ट्स होते हैं, क्या रॉ मटेरियल्स होते हैं, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, सॉल्वेंट बेस्ड सिस्टम के ऊपर क्या एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, ये सारी चीज़ें हम इस जर्नी में देखेंगे। So now I will start. This is a 20th century innovation that is shaping 21st century surfaces. उसके ये हमारा एजेंडा है जो मैंने आपके साथ में अभी डिस्कशन किया, जो हम डिस्कशन इसके अंदर करेंगे। तो सबसे पहले मैं, क्योंकि ऑलनेक्स रेजिन्स में टेक्निकल सर्विस एंड डेवलपमेंट मैनेजर इंडिया सब कॉन्टिनेंट हूँ, पाउडर कोटिंग रेजिन्स देखता हूँ, तो मेरा एक फ़र्ज बनता है कि मैं आप लोगों को अपनी कंपनी के बारे में बताऊं कि हमारी कंपनी क्या है, ऑलनेक्स रेजिन्स क्या है, एंड देन फिर हम पाउडर कोटिंग टेक्नोलॉजी में डिग डाइव करेंगे। सो अगर आप देखें तो ऑलनेक्स रेजिन्स एक ग्लोबल रेजिन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसकी प्रेजेंस ऑल अक्रॉस द ग्लोब है। अगर आप रीजन वाइज जाएंगे तो यूरोप, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, देन अगर आप एशिया के अंदर आएंगे तो पूरा एशिया पैसिफिक, ओशियाना, इवन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। देन अगर आप फर्दर मार्केट के मार्केट इंड्यूस के अकॉर्डिंग जाएंगे तो हम सारे मार्केट में प्रेजेंट हैं। जो हम रेजिन मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो ऑल अक्रॉस द मार्केट यूज़ किया जाता है। जैसे ऑटोमोटिव में, इंडस्ट्रियल मेटल इंडस्ट्री के अंदर, पैकेजिंग एंड इंक्स में हम रेजिन सप्लाई करते हैं, कॉइल्स के अंदर, इंडस्ट्रियल वुड में, डेकोरेटिव के पेंट्स के अंदर। There are certain specialty finishes or specialty resins also which we provide for aerospace, for defense, for marine applications.
देन प्रोटेक्टिव कोटिंग के अंदर, इसके अलावा भी टेलर मेड प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं एज पर द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट। ये ऑलनेक्स की हिस्ट्री है। देखिए, ऑलनेक्स रेजिन एक दिन में बनी हुई कंपनी नहीं है। ऑलनेक्स रेजिन 1948 में वाइनोवा रेजिन्स का स्टार्टिंग हुआ था। 1948 में वाइनोवा रेजिन्स, इसका सबसे पहला नाम वाइनोवा रेजिन्स था। वाइनोवा रेजिन्स को 1969 में होस्ट ने एक्वायर्ड किया, तो हमारे पास टेक्नोलॉजी और ज़्यादा आई। देन फर्दर ये सोल्यूशिया में एक्वायर्ड, सोल्यूशिया ने इसको एक्वायर किया, फर्दर टेक्नोलॉजी आई। यूसीबी ने एक्वायर किया, फर्दर टेक्नोलॉजी आई। सो साइटेक ने एक्वायर किया, साइटेक की टेक्नोलॉजी आई। सो देन फर्दर हमने बायर में से डेस्मोलेक्स जो ब्रांड है वो एक्वायर किया, बायर के कुछ रेजिन सेगमेंट को एक्वायर किया। देन इटरनल के कुछ सेगमेंट को एक्वायर किया जॉइंट वेंचर के थ्रू। देन ये सारा बिजनेस कंबाइन करके ऑलनेक्स बना, और ऑलनेक्स और न्यूप्लेक्स फिर आपस में मर्ज हुए। ऑलनेक्स और न्यूप्लेक्स दो कंपनियां थी, वो दोनों आपस में मर्ज हुई और ऑलनेक्स का फॉर्मेशन हुआ। सो अगर रेजिन टेक्नोलॉजी के बारे में बात की जाएगी तो ये कंपनी या ऑलनेक्स रेजिन्स जो है वो टेक्निकली बहुत रिच है, इसका हेरिटेज बहुत स्ट्रांग है, यानी डेटा बैंक बहुत बड़ा है। सो देखिए, कोई भी जब हम रेजिन बनाते हैं तो रेजिन का एप्लीकेशन पर डेटा बैंक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। यानी किसी रेजिन की कितना सॉल्ट स्प्रे होगा, कितना QUV होगा, वो एक दिन में देखा नहीं जा सकता है। सो उसके लिए अगर किसी का फ्लोरिडा टेस्ट 10 साल का है तो 10 साल पहले आप रेजिन बना के 10 साल बाद आप उसको सेल करने नहीं जाएंगे। आपके पास डेटा लगातार ऐसा होना चाहिए टेक्नोलॉजी का, जिससे कि आप मार्केट को ईजिली कह सके कि दिस इज द रेजिन परसेंटेज at this resin with this formulation you will achieve these are the properties which will be there with this type of formulation. So इसके लिए एक बहुत बड़ा डेटा बैंक लगता है। डेटा बैंक कहाँ से आता है? हिस्ट्री और हेरिटेज से। जितनी डीप आपकी हिस्ट्री, जितनी डीप रूट्स होंगी आपके पास में, उतना ही ज़्यादा अच्छा आपके पास डेटा बैंक होगा, और उससे ही उतना ही अच्छा प्रोडक्ट बना सकते हैं, मार्केट के लिए गाइड कर सकते हैं या मार्केट को एडवाइस कर सकते हैं। दिस इज द ग्लोबल फुटप्रिंट। आप देख सकते हैं कि अक्रॉस द ग्लोब ऐसा कोई भी कॉन्टिनेंट नहीं है या ऐसा कोई भी कंट्रियों का क्लस्टर नहीं है जहां पे हमारी मैन्युफैक्चरिंग साइट ना हो, जहां पे हमारी टेक्निकल सर्विस एंड डेवलपमेंट साइट ना हो, जिस कॉन्टिनेंट के अंदर हमारे पास में R&D सेंटर नहीं हो। सो दैट इज वाई वी कॉल द सन नेवर सेट्स इन ऑलनेक्स, कि रात मतलब 24 आवर्स हमारे यहाँ पे वर्क चलता है। 24 आवर्स वर्क चलने का मतलब यही है कि हो सकता है यहाँ पर इंडिया में रात हो तो US में दिन है, वहाँ पर R&D वर्क चल रहा है, और ये सारी जितनी भी हमारी रिसर्च लैब्स हैं ये एक दूसरे के संग इंटरकनेक्टेड है रियल टाइम। सो वहाँ पर जो काम चलता है वो हम देख सकते हैं, हमारा जितना भी डेवलपमेंट से रिलेटेड वर्क है वो देख सकते हैं। सो दैट इज़ वाई दिस इज़ अ ग्लोबल कंपनी। अगर आप देखेंगे तो 8 प्लांट हमारे अमेरिका में है, EMEA, यूरोप, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका मिलाकर के हमारे पास 10 प्लांट हैं जहां पे हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। APAC में हमारे पास 16 प्लांट्स हैं, और अभी इंडिया में भी हमने रेजिन मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट स्टार्ट कर दिया है विद अ वेरी गुड ग्लोबल स्टैंडर्ड R&D, सिंथेसिस, टेक्निकल सर्विसेज लैब, जहां पर सारे तरीके की टेक्नोलॉजी, क्रॉस लिंकर, UV, पाउडर कोटिंग एंड लिक्विड, सबके लिए टेक्निकल सर्विस सेंटर अवेलेबल है। आप सभी लोगों का स्वागत है, आप कभी भी आकर के वहां पे अपनी प्रॉब्लम्स के लिए डिस्कशन कर सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू मेन फॉर्म, व्हाट इज द पाउडर कोटिंग। हम सभी जानते हैं पाउडर कोटिंग, हम लोग बहुत सुनते हैं, तो पाउडर कोटिंग होती क्या है? देखिए, पाउडर कोटिंग एक ऐसा पेंट सिस्टम है जो बेक किया जाता है, जिसको क्योर करने के लिए आपको टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट होगा। इसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो सॉलिड फॉर्म में होती है, इसका एप्लीकेशन भी सॉलिड फॉर्म में होता है और सप्लाई भी सॉलिड फॉर्म में होता है। सो दैट इज अ काइंड ऑफ पेंट मैन्युफैक्चर इन सॉलिड फॉर्म, अप्लाइड इन सॉलिड फॉर्म, एंड इट इज बेक्ड अप टू अ सर्टेन टेम्परेचर, जहां से आपको एक एक्सीलेंट फिनिश मिलती है। पाउडर कोटिंग का जब ओरिजिन हुआ था तो दिस इज अ ओरिजिन फॉर अ प्रोटेक्टिवनेस, ये सरफेस को प्रोटेक्ट करने के लिए ये कोटिंग डेवलप हुई थी। और क्यों डेवलप हुई थी? क्योंकि ये एक सॉल्वेंट फ्री सिस्टम है, जीरो VOC, नो लिक्विड, इवन वाटर इज नॉट यूज्ड। सो आप वाटर कंजर्वेशन कर रहे हैं, सॉल्वेंट कंजर्वेशन कर रहे हैं, इसलिए ये टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ। 2 तरीके से प्रोडक्शन था, एक तो सरफेस प्रोटेक्शन था, यानी जो आपकी प्रीसियस मेटल्स हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए आपने यूज किया, दूसरा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए।
तो ये दो ऐसे चीजें थी जिसकी वजह से पाउडर कोटिंग सामने आई। अगर पाउडर कोटिंग के फॉर्मुलेशन की बात करें, आप देखें पाउडर कोटिंग का फॉर्मुलेशन मेरे अकॉर्डिंगली सबसे इजी फॉर्मुलेशन है। पाउडर कोटिंग के अंदर सब मिला करके इतने ही कंपोनेंट्स होते हैं। पहला रेजिन, पॉलिएस्टर रेजिन, उसका हार्डनर, जो भी हार्डनर आप लोगे वो हो गया, या इपॉक्सी रेजिन और उसका हार्डनर। तो ये एक रेजिन सिस्टम है जिसकी क्वांटिटी जो है वो 50% से लेकर के 60% के बीच में होती है इन जनरल। आगे जैसे जैसा आपका स्पेसिफिक एप्लीकेशन होगा थोड़ा और रेजिन परसेंटेज बढ़ सकता है, वो डिपेंड करता है। देन फॉलोड बाई इसके अंदर पिगमेंट और एक्सटेंडर रफली जो है 35% से लेकर के 38% के बीच में पिगमेंट और एक्सटेंडर्स रहते हैं। और एक्सटेंडर के अंदर भी आपके पास बेरियम सल्फेट, नेचुरल बेराइट्स, कैल्साइट और डोलोमाइट, ये 4 चीजों का ही ऑप्शन है। ये 4 चीजें ही आप अपनी फॉर्मुलेशन के अंदर ऐड ऑन करते हैं। कैन यू प्लीज जस्ट क्लोज दिस लाइट। आप लोगों को दिख रहा है ना? क्योंकि मुझे थोड़ी आंख पे लग रही थी इसलिए मैंने, घर की बात है तो कह सकते हैं। अगर कोई इंटरनेशनल प्रेजेंटेशन होती तो आंख ऐसे बंद करके भी प्रेजेंटेशन तो देनी ही पड़ती, मजबूरी थी। तो देन इसके अंदर एडिटिव के नाम पे सबसे कम एडिटिव पड़ते हैं। इसके अंदर टोटली अगर आप देखें तो अब 2%, सिर्फ 2% एडिटिव की जगह बची है। 100% सॉलिड सिस्टम में सिर्फ 2% एडिटिव पड़ रहा है, और उसके अंदर भी 1% जो है वो फ्लो मॉडिफायर है। तो बाकी किसी भी एडिटिव की जगह वहां पर बहुत कम है। सो दिस इज अ वेरी सिंपल फॉर्मुलेशन। ये फॉर्मुलेशन कुछ स्पेशल इफेक्ट्स के लिए बदल सकती है, बट तभी भी जो स्पेशल एडिटिव की जो कैटेगरी है वो 1% से ऊपर नहीं जाती है इन एनी केस। नाउ ये इसकी हिस्ट्री है, थोड़ा हिस्ट्री इंटरेस्टिंग है। समझते हैं 1940 में सबसे पहले थर्मोप्लास्टिक पाउडर्स का इन्वेंशन हुआ। थर्मोप्लास्टिक पाउडर क्या होते हैं? आप उसको टेम्परेचर देंगे, वो मेल्ट होंगे, और मेल्ट होंगे देन उसके बाद वो सॉलिड, जब ठंडा होगा तो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, बट उसका एडेशन उतना अच्छा नहीं होता है। और ये जब स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले जैसे आप ऐसे समझ लीजिए कि जो फायर टॉर्च होती है ना, फ्लेम की थ्रू उसकी कोटिंग की जाती थी। तो ये सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट हुआ वो इस तरीके का एक्सपेरिमेंट है कि कुछ सॉलिड चीज है जो प्लास्टिक जैसी है, उसको आपने किसी मेटल सरफेस के ऊपर कोट किया। 1940s के 1940s से 1950s तक यही सिस्टम चलता रहा। इसमें बहुत सारे इश्यूज आए, और ये इश्यूज इस तरीके के थे कि भाई कभी कभी वो थर्मोप्लास्टिक जो पेंट था वो खुद ही फायर पकड़ लेता था। देन स्लोली एंड ग्रेजुअली लोगों ने अपने सबस्ट्रेट को हीट अप करना स्टार्ट किया, और उसको थर्मोप्लास्टिक जो भी पाउडर था या थर्मोप्लास्टिक जो सिस्टम था उसके अंदर कोट करना स्टार्ट किया। अब बहुत अनइवन फिनिशेस आने लगी। देन 1950s में डॉक्टर इरविन गैमर थे, उन्होंने एक टेक्नोलॉजी पेटेंट कराई जिसका नाम था फ्लूइडाइज बेड टेक्नोलॉजी। अभी ये जो थर्मोप्लास्टिक पाउडर था इसका उन्होंने फ्लूइडाइजेशन किया। फर्स्ट फ्लूइडाइजेशन ऑफ एनी टाइप ऑफ पाउडर इज रजिस्टर्ड विद दैट पेटेंट। तो डॉक्टर इरविन गैमर ने इस टेक्नोलॉजी को हम लोगों के सामने लेकर के आए कि थर्मोप्लास्टिक में फ्लूइडाइज बेड टेक्नोलॉजी वो इन्होंने इन्वेंट की। और उसके बाद क्या होता था कि हम सबस्ट्रेट को हीट करते थे, और उसको जो फ्यूम्स ऑफ पाउडर होता था या जो माइन्यूट पार्टिकल थर्मोप्लास्टिक पाउडर होता था उसमें करते थे, वो उस हीटेड सरफेस के ऊपर चिपक जाते थे, एंड देन फिर आप उसको क्योर करने ले जाते थे और वो क्योर हो जाता था। ये टेक्नोलॉजी थी। इसके अंदर भी बहुत सारे फ्लॉज थे। धीरे धीरे देन इलेक्ट्रोस्टैटिक जो कॉन्सेप्ट है वो निकल करके आया कि हाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो केमिस्ट्री के टर्म से हम बोले, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस कैसे काम करते हैं, उसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन निकल करके आया। सो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक इवोल्यूशन। वहां से हमारे पास गन्स का इवोल्यूशन हुआ, जिससे हम पाउडर को अब स्प्रे कर सकते थे किसी सबस्ट्रेट के ऊपर। पाउडर को आप स्प्रे कर सकते हो, कंप्रेस एयर लगाएंगे स्प्रे हो जाएगा, पर जब तक सामने वाली सरफेस पे पहुंचेगा और वहां पर स्टिक नहीं होगा नीचे गिर जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज के थ्रू हमने पहली बार पाउडर को गन की हेल्प से किसी सबस्ट्रेट के ऊपर ड्राई फॉर्म में कोट करना स्टार्ट किया, और वो जब आप चार्ज हटा देते हैं उसके बाद भी वो पाउडर नीचे नहीं गिरता है। दैट इज द सक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसीलिए हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक रिवॉल्यूशन हुआ। 1963 में इसका पेटेंट फाइल हुआ, और इसके बाद फिर कोरोना गन का इन्वेंशन हुआ, जिस गन को हम आज के टाइम में यूज करते हैं।
1917 और 80s का जो टाइम था वो आया जब आपका थर्मोसेटिंग पाउडर के अंदर डेवलपमेंट का रिवोल्यूशन हुआ। मतलब अलग अलग तरीके की केमिस्ट्री बनी, अलग अलग तरीके की फॉर्मुलेशंस डेवलप हुई और वो जनरल मार्केट के लिए आना स्टार्ट हुई। पहले ये सिर्फ प्रोटेक्टिव कोटिंग के लिए यूज़ किया जाता था, स्पेशली इन प्रोटेक्टिव मार्केट्स। अभी ये एक ऐसा इरा था 1970 से 1980s का जिसके अंदर हमने केमिस्ट्री वाइज सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट देखे। यानी हमने पॉलिएस्टर रेजिन बनाया, हमने एक्रिलिक केमिस्ट्री के ऊपर काम किया, हमने इपॉक्सी केमिस्ट्री के ऊपर काम किया, उन दोनों की रिएक्शन मैकेनिज्म को समझा। सो इस तरीके से डेवलपमेंट करते करते हमारा जो 70s और 80s का जो टाइम था वो एक्चुअली में पॉलीमर बनाने का समय था और उस पॉलीमर को अप्लाई करके हमने पाउडर कोटिंग को डेवलप किया। 19 से 2000 तक, अभी वहां पर तो बन गया था, 1990 से 2000 तक का दौर वो था जब यूरोप में वीओसी से रिलेटेड कंसर्न्स बहुत ज़्यादा सामने आने लगे। सो अभी पाउडर के ऊपर जो मार्केट का शिफ्ट था वो बढ़ गया। जैसे मार्केट का शिफ्ट पाउडर के ऊपर बढ़ा वैसे वैसे फिर न्यू डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट्स आने लगी। अब न्यू डेवलपमेंट्स कैसे? आज लिक्विड पेंट के जैसा पाउडर कोटिंग आपको बना के देनी है, सेम फ्लो, सेम फिनिश, सेम एस्थेटिक्स, सेम प्रोटेक्शन, सेम सिमिलर परफॉर्मेंस, एवरीथिंग इज सिमिलर। तो अभी आपको क्या करना होगा? आप कन्वेक्शनल पाउडर कोटिंग की फॉर्मुलेशन से तो ये कर नहीं सकते हैं क्योंकि पाउडर में ऑरेंज पील होता है। नाउ एडवांस फॉर्मुलेशन स्टार्टेड डेवलपिंग। सो 1990 से 2000 का जो दौर था उसने स्पेसिफिक फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट के ऊपर काम किया जो कि आपको आज की डेट में पाउडर कोटिंग का में दिखाई पड़ता है। जो आज पाउडर कोटिंग की नॉर्मल फॉर्मुलेशन है वो 1990 से 2000 के बीच में स्पेशल फॉर्मुलेशंस हुआ करती थी। ये जो ऑरेंज पील हम कहते हैं ना, आज पाउडर के अंदर जो ऑरेंज पील आपको दिखाई पड़ती है, ये ऑरेंज पील कुछ भी नहीं है। उस जमाने में वाकई में ऑरेंज के छिलके के जैसा ही फिनिश आया करता था, इसलिए उसका नाम ऑरेंज पील पड़ा था। फिर इसके बाद 2000 ऑनवर्ड्स क्या हुआ? 2000 ऑनवर्ड्स सिर्फ टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग साइड में नहीं बदली, 2000 ऑनवर्ड्स टेक्नोलॉजी जो थी वो एप्लीकेशन साइड में भी बदली। जैसे गन्स का, ऑटोमेटेड गन्स का इस्तेमाल होना शुरू हुआ, रोबोटिक गन्स का या रोबोटिक बूथ्स का यूज करना स्टार्ट किया ऑटोमोटिव कंपनीज ने। धीरे धीरे करके ये डेवलपमेंट बढ़ता चला गया। आज की डेट में जो रीसेंट डेवलपमेंट या रीसेंट जो डिमांड्स हैं वो क्या हो गई है मार्केट की? स्मार्ट कोटिंग की तरफ। लो बेक दो, नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड परफॉर्मेंस देनी दीजिए, अल्ट्रा लो बेक, यूवी IR क्योर पाउडर्स। तो सबस्ट्रेट्स अदर देन मेटल, अभी तक मेटल के लिए जानी जाती थी, अब अदर देन मेटल के लिए भी पाउडर चाहिए। सो ये 2000 के बाद का डेवलपमेंट है और आज हम जिस दौर में बैठे हैं, इंडिया ये सारी चीज़ों को पार कर चुका है। इसमें से सिर्फ सबस्ट्रेट्स अदर देन मेटल, यानी मेटल के अलावा जो सबस्ट्रेट्स हैं उसके ऊपर इंडिया सिर्फ स्ट्रगल कर रहा है अभी डेवलपमेंट में। और मेरा ऐसा मानना है कि अगले 5 सालों में हम मेटल को छोड़ करके MDF के ऊपर, नेचुरल वुड के ऊपर और प्लास्टिक के ऊपर, इन 3 चीज़ों के ऊपर पाउडर कोट करने के में कैपेबल हो जाएंगे। अच्छा डेवलपमेंट हो चुका होगा। And now why it is matter today? So क्यों पाउडर कोटिंग की रिक्वायरमेंट आज की डेट में क्यों हो गई है? ये पाउडर कोटिंग देखो, आपको देखने में ऐसा लगेगा बाकी जैसा इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, बेकिंग पेंट का वैसा ही है, स्टोविंग पेंट का। लेकिन अगर आप इसको बहुत ध्यान से इसकी प्रॉपर्टीज को देखेंगे, ये एक बहुत क्लीन सिस्टम है। सॉल्वेंट फ्री है तो बहुत क्लीन सिस्टम हो गया। सेकेंड, जो लिक्विड होता है वो बहुत डर्टी इन्वायरमेंट क्रिएट करता है। ना सिर्फ आपके लिए एयर पॉल्यूशन ही नहीं है, वो आपके लिए क्लॉथ पॉल्यूशन भी है। कपड़ों में लग जाएगा, हाथ में लग जाएगा, साफ करो, उसके लिए थोड़ी देर छोड़ दिया, जिस जगह पे छोड़ दिया वहां पे ही जम जाएगा, फिर उसको साफ कराओ, तो वो एक डर्टी इन्वायरमेंट भी क्रिएट करता है। पाउडर भी नो डाउट फिजिकल फॉर्म में जो फैक्ट्री होगी वो आपको थोड़ी डर्टी लगेगी, ऐसा नहीं है कि नहीं लगेगी, लेकिन वो इजीली क्लीनेबल है। आप उसको वाटर से वॉश कर सकते हो, आप उसको कंप्रेस्ड एयर के थ्रू क्लीन कर सकते हो। सो ये इजी क्लीन इन्वायरमेंट है। लेकिन जो लिक्विड का इन्वायरमेंट होता है उसकी क्लीनिंग थोड़ी डिफिकल्ट होती है, इसलिए। दूसरा, जो परफॉर्मेंस है, कॉमर्शियल वर्सेस द परफॉर्मेंस, दैट इज मच मोर बेटर इन पाउडर कोटिंग देन द लिक्विड कोटिंग। दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजन व्हाई वन ऑफ द मेजर इंडस्ट्री, जिसको कि हम फर्नीचर इंडस्ट्री बोलते हैं, वो लिक्विड से पाउडर में शिफ्ट हुई। आज की डेट में 80% फर्नीचर इंडस्ट्री जो है वो पाउडर में शिफ्ट हो चुकी है। सिर्फ रीजन यही है ना।
अगर आप लिक्विड की और पाउडर की एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में बात करेंगे तो देखिए लिक्विड के अपने एडवांटेज हैं, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता है, और ना पाउडर आने से लिक्विड खत्म हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। सो पाउडर के अपने एडवांटेज हैं, लिक्विड के अपने एडवांटेज हैं। अगर देखेंगे तो स्मूथ फिनिश कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा तो लिक्विड पेंट के सिवा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है आज की डेट में। देन नंबर ऑफ कलर फिनिश इजी वे में बनाने का जो तरीका है वो लिक्विड पेंट के अंदर अवेलेबल है। आपने ग्लॉसी बनाया, मैटिंग एजेंट डाल दो, मैट बन जाता है। मैट के अंदर 30 ग्लॉस से डेड मैट बनाना है और मैटिंग एजेंट डाल दो, बन जाएगा। पाउडर में ये फ्लेक्सिबिलिटी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। देन जो इक्विपमेंट कॉस्ट है, यानी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है या जो आपका मशीनरी कॉस्ट है, वो लिक्विड पेंट में बहुत कम है एज कंपेयर टू पाउडर पेंट। देन एनर्जी का जो रिक्वायरमेंट है वो कम है लिक्विड पेंट में, स्पेशली इन केस ऑफ एयर ड्राइंग सिस्टम। पाउडर की अगर आप बात करें तो ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है, कोई वीओसी नहीं, नो सॉल्वेंट नो वीओसी। क्लीनिंग के लिए भी सॉल्वेंट की जरूरत नहीं है, मिनिमम सॉल्वेंट की जरूरत है क्लीनिंग के लिए, वो भी लास्ट स्टेज में कहीं जरूरत पड़ती है, अदरवाइज वो भी नहीं है। देन ड्यूरेबल रेजिस्टेंस, नॉर्मल लिक्विड कोटिंग के कंपैरिजन में ज़्यादा ड्यूरेबल होता है और ज़्यादा रेजिस्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं इसके अंदर, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ कोरोजन रेजिस्टेंस। फास्टर क्योर करना है, फास्टर प्रोडक्टिविटी करने के लिए पाउडर कोटिंग बहुत अच्छा है। पाउडर कोटिंग का जो क्योरिंग टाइम है वो 10 मिनट का है, 15 मिनट का, 1 घंटे बाद आप अपना पैनल पैक कर सकते हो, ठंडा हो जाए पैक करो भेज दो। एयर ड्राइंग सिस्टम में तो आपको वेट करना पड़ेगा, जब तक पूरा हार्ड ड्राई नहीं आ जाएगा तब तक आप पैक नहीं कर सकते उसको, और हार्ड ड्राई आने के बाद भी आपको 1 दिन रखना पड़ता है, क्योंकि रैपिंग करेंगे कहीं सॉल्वेंट वापस से सीपेज ना हो जाए और बबल फॉर्मेशन ना आ जाए, या हमारी जो जिससे रैपिंग कर रहे हैं उसके रैपिंग मार्क्स ही ना आ जाए उसके ऊपर। सो दैट इज अ चैलेंज। देन हायर प्रोडक्टिविटी, द सेम थिंग इज द हायर प्रोडक्टिविटी एट द एंड यूज। और यूवी प्रोटेक्शन आउटडोर एप्लीकेशंस के लिए पाउडर के अंदर देयर आर सर्टेन रेजिन केमिस्ट्री जिसमें लिक्विड से ज़्यादा अच्छा मिलता है। डिसएडवांटेजेस अगर आप देखोगे, भाई ओवन क्योरिंग का रिक्वायरमेंट है, बिना ओवन के यानी बिना टेम्परेचर के पाउडर क्योर नहीं किया जा सकता। हाँ ये जरूर है कि अब की जो क्योरिंग टेम्परेचर है वो 120 डिग्री तक आ चुका है, सो उतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं लगती है, बट स्टिल इट रिक्वायर्स एनर्जी। सेकेंड, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है। सो जो लिक्विड के एडवांटेज हैं अगर आप देखोगे वो पाउडर के डिसएडवांटेज हैं, ठीक है ना। सो ये एक दूसरे के लिए क्या करते हैं ना, समता पूरक इंडस्ट्री है, एक दूसरे को सामने से कॉम्प्लीमेंट करती है। नाउ इफ वी आर कमिंग टू, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको इसको जरूर ध्यान से देखना चाहिए, समझना चाहिए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यहां पर 2005 से 2023 के बीच में इंडस्ट्रियल कोटिंग का मार्केट सेगमेंट है। आप देखिए 2005 में 18% जो कोटिंग बनती थी वो ऑटोमोटिव के अंदर थी, उसके बाद 15% प्रोटेक्टिव में थी, 20% ऑटोमोटिव रीफिनिश था, 6% पाउडर कोटिंग था, 24% जनरल इंडस्ट्रियल था, जिसके अंदर सब आता है, मतलब जो कहीं काउंट नहीं होता है वो जनरल इंडस्ट्रियल में काउंट कर लिया जाता है, सॉल्वेंट बेस्ड केमिस्ट्री का। देन फॉलोड बाय फंक्शनल कोटिंग्स थी, 1 से 2% फंक्शनल कोटिंग थी, एंड अदर्स, अदर देन मींस हम अलग अलग सेगमेंट जिसको हम काउंट नहीं कर पाते हैं या हम जिसका प्रॉपर इंड्यूज नहीं दे पाते हैं उसको अदर्स में डाल देते हैं। सो 16% था। नाउ कमिंग बैक टू 2023, आप देखिए ऑटोमोटिव ओईएम का जो रेशियो है वो 25% हो चुका है 2023 तक। देन प्रोटेक्टिव कोटिंग जो है वो 15% से बढ़ करके 22% हो गया है। ऑटोमोटिव रीफिनिश घट गया है, 17% हो गया है। जो मार्केट का शिफ्ट है आप देखिएगा इस प्रेजेंटेशन, इस स्लाइड में, पाउडर कोटिंग जो 6% था वो 12% मार्केट में शेयर रखता है। देन जनरल इंडस्ट्रियल जो पहले 24% सेगमेंट था अब वो सिमेट करके 10% रह गया। यानी जो जनरल इंडस्ट्रियल हमारा इनेमल एनसी ये वाला जो सेगमेंट था, ये इसका वॉल्यूम कम नहीं हुआ है, लेकिन ओवरऑल जैसे एक्सपेंशन होता है ना मार्केट का, उसके अंदर शेयर कम हो गया है। तो जो एक्सपेंशन में मतलब जो जब मार्केट ग्रो कर रहा होता है और हमको जितनी ग्रोथ मिलनी चाहिए वो ग्रोथ नहीं मिली, हमें ग्रोथ मिली है लेकिन कम मिली है। ग्रोथ किसके पास अलग अलग हिस्सों में बट गई, जैसे कुछ ऑटोमोटिव में बट गई, कुछ पाउडर ने आपका हिस्सा, तो जनरल इंडस्ट्रियल का मेजॉरिटी जो हिस्सा था वो पाउडर कोटिंग ने अपने अंदर कंज्यूम कर लिया। और स्पेशली 2005 से 2023 के बीच में जो अप्लायंस इंडस्ट्री थी, अप्लायंसेस थे, वाइट गुड्स थे, HVAC थे, यानी जो AC रेफ्रिजरेटर कूलर ये वाला जो सेगमेंट है, देन आपका जो फर्नीचर का सेगमेंट है, अलमीरा का सेगमेंट है, ये पूरा पाउडर कोटिंग ने अपने हाथ में, मतलब जहां पे पहले लिक्विड नॉर्मल कोटिंग डोमिनेट करती थी वहां पे अब पाउडर डोमिनेट करने लगा है, या कुछ जगहों पे दोनों बराबर हैं, इस तरीके का वो। अभी पाउडर कोटिंग का मार्केट शेयर अगर आप देखना चाहो तो पाउडर कोटिंग किस हिस्सों में बढ़ा,
2005 में पाउडर कोटिंग आर्किटेक्चरल सेगमेंट में 10% था, एस के अंदर यानी एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में 6% केवल हिस्सेदारी थी। देन जनरल इंडस्ट्रियल के अंदर 45%, अगर 100 टन बनाते थे तो 45 टन जो था वो जनरल इंडस्ट्रियल में ही बेच रहे थे। देन वाइट गुड्स, ऑटो, ईवी एंड अदर्स। सो ये एक पूरा सेगमेंट है। वाइट गुड्स के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स सेगमेंट हमारा आता है, HVAC एंड इलेक्ट्रॉनिक्स सेगमेंट, यानी जो फैन हो गया, AC हो गया, कूलर हो गया, माइक्रोवेव हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई, फ्रिज हो गया, ये वाला जो सेगमेंट है इसको हम वाइट गुड्स बोलते हैं। नाउ कमिंग बैक टू 2023, अगर आप 2023 में देखेंगे तो ये जो शेयर है ये कैसे बढ़ा, जो 6% था वो 19% हो गया। 6% शेयर कौन सा था? एस का था। यानी 2005 से लेके 2023 के बीच में एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के अंदर पाउडर कोटिंग ने अपनी ग्रोथ एक्सपोनेंशियली कर ली। ठीक, ये मार्केट साइज कम नहीं, मार्केट बढ़ता ही जा रहा है। जो पहले अगर 5,000 टन का मार्केट था फॉर एग्जांपल, तो आज 50,000 टन का है। लेकिन उस 50,000 टन में जो पहले जो 5,000 में 45% हिस्सा जनरल इंडस्ट्रियल का था, आज 50,000 के अंदर केवल 28% हिस्सा रह गया है। सो और बाकी जगहों पे भी ग्रो हो रहा है, जो मार्केट है वो पेनिट्रेट कर रहा है। सो पाउडर कोटिंग इज नाउ पेनिट्रेटिंग द मार्केट। देन 24% वाइट गुड्स के अंदर जो 30% शेयर था वो 24% में कन्वर्ट हो गया। सो शेयर कम होने का मतलब ये नहीं है कि वॉल्यूम कम हो गया, वॉल्यूम बढ़ा ही है, बट बाकी जगहों पे चीजें और बढ़ गई हैं तो परसेंटेज वाइज आपको कम दिख रहा है। दिस इज एन अलार्मिंग सिचुएशन फॉर स्पेशली फॉर सॉल्वेंट बेस्ड इंडस्ट्री, बिकॉज ऐसा देखा जा रहा है कि पाउडर कोटिंग आज हर जगह पर एंट्री लेने की कोशिश कर रहा है। एंड जो एप्लीकेशन जो सिस्टम है ना, वहां पर भी क्या होता है कि उनका वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, एंड देन फर्दर वो जो प्रॉफिट्स है ना या जो एडवांटेजेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। जैसे 30-40% तो सॉल्वेंट में एडवांटेज है उनको, जो 30% सॉल्वेंट एनवायरनमेंट में हवा में उड़ रहा था उतनी तो उनकी ऐसे ही सेविंग हो रही है। सो अगर कंपैरेटिवली देखेंगे तो पाउडर कोटिंग यूज करने पे दो जगहों पे डिसएडवांटेज है। एक अर्ली इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है, दूसरा एनर्जी का कॉस्ट है, बट उसके साथ में हायर प्रोडक्टिविटी एंड जो सॉल्वेंट इवोपरेशन जो जीरो सॉल्वेंट है उसकी वजह से वो ओवरऑल प्रॉफिट में रहते हैं। वाई दिस, जो मैं अभी बात कह रहा था कि क्यों बढ़ रही है पाउडर कोटिंग, वाई इट इज एडवांसिंग रैपिडली सो फास्ट इन मॉडर्न ईरा, मतलब आज की डेट में क्यों बढ़ती चली जा रही है। इन्वायरमेंटल डिमांड्स जगह जगह पे आ ही रहा है, ये ग्लोबल पॉइंट है, इंडिया का नहीं, बट अगर आप अपने आप को भी देखोगे तो एक सॉल्वेंट से भरे हुए इन्वायरमेंट में बैठने से अच्छा है आप एक नॉर्मल इन्वायरमेंट में रहना चाहोगे। सेकंड है कॉस्ट इफिशिएंसी, ट्रांसफर रेशियो जो है वो 98% तक है, यानी अगर आपने 100 ग्राम पेंट स्प्रे किया तो चांसेस हैं कि 98 ग्राम जो पाउडर है वो सबस्ट्रेट पे ट्रांसफर हो जाएगा। लिक्विड में अगर आप 100 ml ट्रांसफर करते तो रिजल्टेंट फिल्म नहीं मिलती है आपको, रिजल्टेंट फिल्म जो मिलेगी 100 ग्राम के सामने वो आपको मिलेगी 45 ग्राम 60 ग्राम की फिल्म मिलने वाली है। सो दिस इज एन एडवांटेज। प्रोडक्ट परफॉर्मेंस, प्रोडक्ट के अंदर भी परफॉर्मेंस वाइज जो कॉस्ट वर्सेस परफॉर्मेंस का रेशियो है वो पाउडर के अंदर बहुत ज्यादा है। देन प्रोसेस सिंप्लिसिटी, सो प्रोसेस बहुत सिंपल है, अप्लाई करो, बेक करो, पैक करो, वेट नहीं करना है, सारी चीजें अंदर ही होनी है। सो अगर एक सिस्टमैटिक एप्लीकेशन एरिया है तो वहां के लिए पाउडर कोटिंग बहुत एफिशिएंट होती है। दिस इज द मैन्युफैक्चरिंग एंड परफॉर्मेंस टेस्टिंग। सो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है, सबसे पहले रेजिन, हार्डनर, पिगमेंट, एक्सटेंडर, एडिटिव्स जो आपकी फॉर्मुलेशन है सबका वजन किया, वजन करके मिक्सर के अंदर डाला जिसको प्रीमिक्स बोलते हैं, प्रीमिक्स मिक्सर चला करके मिक्स किया, एक होमोजेनाइज सॉलिड मिक्स अटेन किया, उस सॉलिड मिक्स को हमने एक्सट्रूडर में यूज डाला और एक्सट्रूड किया, एक्सट्रूड करके उसको मोल्टन कंडीशन में कन्वर्ट किया, मोल्टन कंडीशन को वापस से हमने चिप्स फॉर्म में कन्वर्ट किया अंडर बाय द कंप्रेशन ऑफ चिल रोल्स, एंड देन वो पाउडर वो चिप्स फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। चिप्स फॉर्म को हम लेके जाते हैं ग्राइंडिंग करने के लिए, ग्राइंडिंग किया, सीविंग किया और पार्टिकल साइज अटेन करते हुए अपना पाउडर बना लिया। देन इसके बाद आती है इसकी परफॉर्मेंस टेस्टिंग। सो स्प्रे किया, पैनल बनाया, पैनल लगाने के बाद दो तरीके से टेस्टिंग होती है, एक है ड्राई पाउडर की टेस्टिंग कि ड्राई पाउडर में आपको क्या क्या चेक करना चाहिए, एंड द सेकेंड वन इज जो फिल्म बन गई है फिल्म के अंदर क्या क्या चेक करना चाहिए। सो जो सेकंड पिक्चर या डायग्राम है ये उसके लिए है।
सो पाउडर कोटिंग के अंदर आप जब भी पाउडर बनाते हो तो क्या क्या चीज़ें चेक कर सकते हो, रिएक्टिविटी, जेल टाइम चेक करिए, फ्लो चेक करिए, एंड साथ ही साथ में स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक करिए यहाँ पे पाउडर की। पाउडर फिल्म के अंदर आप बेकिंग शेड्यूल देखने के बाद जो क्योर फिल्म आपकी आएगी उसमें ओवर बेक रेजिस्टेंस, गैस ओवन रेजिस्टेंस, वेदरिंग के ये 4 पैरामीटर्स हैं, फ्लोरिडा, क्यूयूवी, ए और बी, जेनॉन, आमा और क्वालिकोट। देन टेस्टिंग के अंदर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में जाएंगे, इम्पैक्ट चेक करेंगे, डायरेक्ट और रिवर्स, देन कोनिकल मेंडल टेस्ट करेंगे जो फ्लेक्सिबिलिटी बताता है, कपिंग टेस्ट करेंगे, टी बेंड करेंगे, अपीयरेंस के अंदर देखेंगे पीसीआई फ्लो कैसा, यानी लेवलिंग कैसी आ रही है, देन फॉलोड बाय उसका ग्लॉस, हेज, डीओआई, कलर, जो आप बाकी सारी चीजों में करते हैं वही सारा इसके अंदर भी करना है, बट थोड़ा सा चेंज आता है यहाँ पे। सो दिस इज all about the powder performance test, and this is a simple process. That is the resin chemistry, और अगर इसका evaluation देखेंगे, resin chemistry अगर देखें तो epoxy, hybrid polyurethane, TGIC, primate, powder link, acrylic, UV resins, इतने तरीके की chemistries available हैं पाउडर के अंदर जो बाइंडर सिस्टम में, अलग अलग बाइंडर सिस्टम में डिवाइड होती हैं। सो इसके अंदर epoxy है, जो रेजिन, इपॉक्सी रेजिन है, वो डाइसेनामाइड से क्योर होगा, वो उसका हार्डनर है। देन पॉलिएस्टर रेजिन है, अगर आप हाइब्रिड सिस्टम बना रहे हैं तो वो इपॉक्सी रेजिन से क्योर होगा। हाइड्रोक्सिलेटेड पॉलिएस्टर्स हैं जो पॉलीयूरेथेन में है तो वो ब्लॉक डाइसोसाइनेट से क्योर होंगे। तो इस तरीके से देखें तो यहाँ पर हार्डनर और क्रॉस लिंकर, रेजिन और उसका क्रॉस लिंकर बिल्कुल क्लियरली अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि टीजीआईसी के अंदर 4 तरीके के टीजीआईसी हैं। टीजीआईसी एक ही तरीके का, ईडब्ल्यू मिला लीजिए और इस्तेमाल करिए। परफॉर्मेंस देखने के लिए यहां पर आप रेजिन पे डिपेंडेंट हैं, जो हार्डनर है वो फिक्स है। सो देयर इज वन कंपोनेंट दैट इज फिक्स्ड, अनदर कंपोनेंट इज वेरिएबल फॉर चेंजिंग योर परफॉर्मेंस। देन क्लासिफिकेशन, अगर आप देखिए एडवांटेज कहां पे इस्तेमाल किया जाता है, कौन सा सिस्टम कहां पे सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। सो अगर इपॉक्सी देखेंगे तो इपॉक्सी में सबसे अच्छी प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रोटेक्टिव की। सो प्रोटेक्शन देने की प्रॉपर्टी सबसे अच्छी है, तो उसको हम कहाँ यूज करते हैं, फंक्शनल कोटिंग्स में, पाइप में, रिबार में, इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशंस के अंदर, या जहाँ पे हाई एंटी कोरोसिव सिस्टम हमको चाहिए वहाँ पर। देन हाइब्रिड सिस्टम जो है अप्लायंसेज, ऑटोमोटिव, जहाँ थोड़ा लीस्ट एक्सपेंसिव टाइप ऑफ पाउडर, या जो आपको जहाँ पे मार्केट कॉम्पीट करना होता है, सॉल्वेंट बेस्ड सिस्टम से पाउडर को कॉम्पीट करना होता है, वहाँ पर हाइब्रिड सिस्टम्स जाते हैं। देन यूरेथेन, ये थिन फिल्म एप्लीकेशन के लिए यूरेथेन पाउडर्स का यूज़ किया जाता है, यानी जिन्हें पीयू पाउडर बोलते हैं। टीजीआईसी, इसकी वेदरेबिलिटी बहुत अच्छी होती है, एक्सीलेंट ड्यूरेबिलिटी होती है, केमिकल रेजिस्टेंस अच्छा है, कोरोजन रेजिस्टेंस अच्छा है। देन प्रिमिड है, प्रिमिड जो है वो आरओएचएस सेगमेंट के लिए आता है, यानी जहाँ पर आपको एसएचवीसी जो सब्सटेंस ऑफ हाईली कंसर्न्स हैं उनसे जब आपको बाहर निकलना है, एक्सपोर्ट ऑर्डर्स में जाना होता है, तो प्रिमिड सिस्टम का आप यूज़ करते हैं। एक्रिलिक्स, ये ऑटोमोटिव और अप्लायंसेस सेगमेंट में डेड मैट केमिस्ट्री बनाने के लिए, यानी 0.2, 0.3, लेस देन 5 मैट बनाने के लिए आप एक्रिलिक केमिस्ट्री का यूज़ करते हैं। समटाइम्स अलॉय व्हील्स के अंदर एक्रिलिक केमिस्ट्री का यूज़ करते हैं क्योंकि इसकी फ्लो और फिनिश बहुत अच्छा होता है। सो देयर आर डिफरेंट केमिस्ट्रीज डिफाइंड फॉर डिफरेंट एप्लीकेशंस, वेरी स्पेसिफिकली डिफाइंड। लेकिन ये टेक्नोलॉजी अभी भी इवॉल्व हो रही है, इसने अभी भी सैचुरेशन नहीं पाया है। सो अभी भी इसके अंदर बहुत सारे नई चीजों का नया डेवलपमेंट होने की जगह बाकी है। ये कुल मिलाकर के 60 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है। ये कॉमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। आपको अगर आप प्लांट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको क्या क्या चीज जरूरत पड़ेगी, मिक्सर की जरूरत पड़ेगी और उसके संग एक मिक्सिंग कंटेनर की जरूरत पड़ेगी। देन आपका ये ग्राइंडिंग का सेटअप है जो ये इंडस्ट्रियल स्केल का है, एंड दिस इज द एक्सट्रूजन सेटअप जो ये नीचे सबसे दिया हुआ है। सो पहले मिक्स करने के बाद एक्सट्रूड करेंगे, एक्सट्रूड करके चिप्स बनाएंगे, चिप्स बना करके उसको ले जाएंगे ग्राइंडर में और वहां से अपना पाउडर फॉर्म कर लेंगे। एंड पाउडर कोटिंग का एक सबसे अच्छा एडवांटेज क्या है, यहाँ शेड डेवलप करने के बाद प्रोडक्शन शुरू होता है। सो जो आपको कलर चाहिए वो कलर जब आप ट्रायल में बना लेते हो तब प्रोडक्शन मशीन रन होती है, तब आप फुल बैच बनाते हो और वो पूरा बैच एक जैसा निकलेगा। यहां पे बैच बना के बीच में शेड मैच नहीं किया जा सकता, बीच में कोई भी प्रॉपर्टी आप इनबिल्ट नहीं कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपने कोई पाउडर बना लिया है और उसमें किसी तरीके का कोई
कमी है तो आपका वो पाउडर जीरो जीरो नहीं हो गया, वेस्ट नहीं हो गया है। वो पाउडर आप नेक्स्ट बैच में 20% 30% फ्रेश मटेरियल के संग यूज करके और फिर से ले सकते हो। इवन जो रिजेक्टेड पाउडर आपका बाहर से आया है कस्टमर एंड से, उसमें किसी तरीके कोई प्रॉपर्टी का इशू आ गया तो देन स्टिल यू कैन यूज इट। सो यहां पर जो वेस्टेज है ना, दैट इज लेस देन 3%। ओवरऑल फैक्ट्री का वेस्टेज लेस देन 3% है। सो दैट इज अ डिफरेंट दैट इज एन डिफरेंट एडवांटेज ऑफ पाउडर कोटिंग। ये 2000 जो जैसा मैंने आपको दिखाया था, तो मेरा जो स्लाइड था वो आपको 2000 के बाद का जो डेवलपमेंट का था उसके ऊपर। सो 2000 के बाद या ये बोले 2020 के बाद, 2020 के बाद जो नए डेवलपमेंट मार्केट में आए हैं वो क्या क्या हैं। एनर्जी एफिशिएंसी के ऊपर बहुत वर्क हो रहा है, बिकॉज पाउडर के अंदर जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है, अभी जैसे यूरोप में एनर्जी क्राइसिस हुआ तो वहाँ से बहुत बड़ा प्रेशर आया रेजिन मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर कि लो क्योरिंग पाउडर कोटिंग बननी चाहिए। सो एनर्जी एफिशिएंसी, तो वहाँ पर अल्ट्रा लो बेक एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो अभी डेवलपमेंट में है, विच कैन बी क्योर्ड एट 100 डिग्री सेल्सियस ऑल्सो। सो वो एक टेक्नोलॉजी अंडर डेवलपमेंट है। देन रिन्यूएबल सोर्सिंग के ऊपर, मतलब जो बायोबेस फीड स्टॉक बेस्ड है उसको इस्तेमाल करते हुए आप बनाइए, जैसे एनपीजी बायोबेस लीजिए, इस तरीके की चीज़ों को ले करके बनाने का। सेफर मटेरियल यानी इन्वायरमेंट फ्रेंडली। सो ये रिसेंट एडवांसमेंट्स हैं। रिसेंट एडवांसमेंट मतलब आगे का जो 10-15 साल का जो पाउडर के अंदर डेवलपमेंट का पाथ है वो इधर से जा रहा है। अभी तक जो देखा था वो पुराना डेवलपमेंट था, वो सब स्टेबलाइज हो चुका है या स्टेबलाइज हो रहा है इंडिया के अंदर, और ये नया डेवलपमेंट ग्लोबली हो रहा है। अभी थोड़ा सा जो पाउडर कोटिंग का जो मार्केट सेगमेंट है ना, उसकी भी थोड़ी एनालिसिस करके देखते हैं कि मार्केट सेगमेंट कैसा है, क्या है। देखिए पहले क्या था, या इंडिया का एक हमारा ऐसा मानना है कि हम एक पैसिव एडॉप्टर हैं किसी भी टेक्नोलॉजी के। मतलब बाहर से टेक्नोलॉजी आएगी और हम उसको बहुत स्लोली धीरे धीरे अडॉप्ट करते हैं, हम उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेकर के उसको डेवलपमेंट करने नहीं जाते हैं। बट पाउडर कोटिंग ऐसा सेगमेंट नहीं था। पाउडर कोटिंग के अंदर इंडिया पैसिव एडॉप्टर नहीं रहा। इंडिया के जो मैन्युफैक्चरर थे वो पैसिव एडॉप्टर नहीं रहे, बल्कि उन्होंने आगे से बढ़ के इनोवेटिव एडवांसमेंट्स फॉर्मुलेशन में खुद से किए, विद द हेल्प ऑफ रॉ मटेरियल सप्लायर ओनली। बट स्टिल एक जो झील थी किसी भी प्रोडक्ट को डेवलप करने की, टेक्नोलॉजी को डेवलप करने की, वो पाउडर कोटिंग इंडस्ट्री में ज्यादा थी, इसलिए उसकी ग्रोथ इतनी ज्यादा हो गई। इंडिया के अंदर आज की डेट में रफली 350 रजिस्टर्ड पाउडर कोटिंग मैन्युफैक्चरर्स हैं। और अगर आप ये देखेंगे तो इसमें मल्टीनेशनल भी हैं और फास्ट फॉरवर्ड मूविंग रीजनल प्लेयर्स हैं, फॉलोड बाय एसएमई एंड एमएसएमई प्लेयर्स ऑल्सो। सो ये बाजार ऐसा नहीं है कि जहां पे सिर्फ बड़े बड़े खेल रहे हैं। इस बाजार में भी 15 टन महीने का बनाने वाला सर्वाइव कर रहा है, और इसी पाउडर कोटिंग के बाजार में 1500 टन बनाने वाला भी है। सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़े प्लेयर्स का मार्केट है, सिर्फ छोटे प्लेयर्स का मार्केट है। पाउडर कोटिंग में सारे तरीके के मैन्युफैक्चरर हैं। देन अगर आप देखेंगे तो एप्लीकेटर्स कितने हैं। सो पाउडर बनेगा तो अप्लाई होगा, तो उसका भी एक आपके पास में कुछ आइडिया होना चाहिए। सो मोर देन 1500 प्लस एप्लीकेशन रजिस्टर्ड एप्लीकेटर्स हैं। ये अनरजिस्टर्ड एप्लीकेटर्स की तो बात ही नहीं करता है, रजिस्टर्ड एप्लीकेटर्स इतने हैं। हब कौन कौन से हैं, जैसे महाराष्ट्र एक हब है, राजस्थान हब है, यूपी हब है, दिल्ली एनसीआर हुआ, पंजाब हुआ, तमिलनाडु, गुजरात, कोयम्बटूर, जो साउथ का एरिया है, हर जगह पे पाउडर का पेनिट्रेशन है। देन इंड यूज कहां पर, कहां पे आपको कस्टमर मिलेगा, कौन बनाने वाला है, क्या बनाने वाला है जो आपको मिलने वाला है, जिसको आप पिच करोगे या जिसको आप टारगेट करोगे आगे जब बनाओगे तो। और ऑटोमोटिव वाले में ऑटोमोटिव पार्ट्स के अंदर लगती है, अप्लाइंसेस, फर्नीचर, आर्किटेक्चरल एल्युमिनियम सेक्शंस, यानी ये जो आपके फैकेट्स लगते हैं, विंडो फ्रेम्स बनते हैं एल्युमिनियम के, उसके ऊपर जो कोटिंग है वो पाउडर कोटिंग जो है वो मार्केट। एस एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट का हो गया, HVAC जो आपका AC का सेगमेंट है वो हो गया। देन इसके अलावा आप और सेगमेंट फाइंड आउट करिए, उसमें पॉसिबिलिटी है पाउडर कोटिंग की। कोई भी सबस्ट्रेट 130 डिग्री 10 मिनट का टेम्परेचर अगर बियर कर सकता है तो वहां पे पाउडर कोटिंग अप्लाई करने की पॉसिबिलिटी है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। मतलब
जितना मुझे आपको इसके बारे में बताना था एज अ ब्रीफ, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अगर आप में से किसी का कोई क्वेरी है पाउडर कोटिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर, देन वी कैन डिस्कस ओपनली। थैंक यू। डॉली बेटे इधर आओ, ये माइक लेके जाना, माइक लेके जाओ। हेलो, हाँ जी, थैंक यू डॉक्टर साहब आपकी इतनी बढ़िया प्रेजेंटेशन के लिए। एक्चुअली हम पाउडर कोटिंग में नहीं हैं, मेरा शायद क्वेश्चन गलत भी हो सकता है। तो मेरा ये क्वेश्चन था, जैसे आपने बोला ये बेकिंग सिस्टम है, इसको एप्लीकेशन जो इसका अप्लाई करने का है, तो इसकी क्या लिमिटेशन, जैसे आपने लिमिटेशंस मेंशन की, उसमें ये था क्या भी इसको मेटल के अलावा किसी और सरफेस के ऊपर नहीं किया जा सकता? अगर किया जा सकता है तो वो क्या टेक्नोलॉजी है? यही बेकिंग रहेगी? जैसे मैं बात कर रहा हूँ वुड की, आजकल फर्नीचर रेडीमेड फर्नीचर्स बन रहे हैं, तो उसमें पीजू वगैरह यूज़ होता है, जिसको हम डिको पेंट लेमन लैंग्वेज में बोल देते हैं। तो वहाँ पे भी क्या इसको अप्लाई किया जा सकता है, या फिर प्लास्टिक सरफेस के ऊपर भी किया जा सकता है? जैसे ऑटोमोटिव बहुत बड़ा सेक्टर है, उसके प्लास्टिक के पार्ट्स भी बहुत होते हैं, जैसे बम्पर्स हैं, या फिर कोई ऑटोमोटिव में ये कार्स वगैरह के इनसाइड प्लास्टिक के पार्ट्स हैं, उनके ऊपर भी किया जा सकता है? क्या इसकी सिर्फ लिमिटेशन मेटल के लिए है? देखिए, सबसे पहली बात तो हमें ये समझना पड़ेगा कि पाउडर कोटिंग जो एक बेकिंग टेक्नोलॉजी है, आज इंडिया में किस टेम्परेचर, बेकिंग टेम्परेचर पे सक्सेसफुल है। सो जो आज का जो सक्सेसफुल टेम्परेचर है वो 140 डिग्री सेल्सियस 10 मिनट्स का है। ठीक। दूसरा आता है अब सबस्ट्रेट का सिलेक्शन, जो आपका मेन पॉइंट है। पाउडर कभी भी विदाउट बेकिंग नहीं लग सकता है, उसकी प्रॉपर्टी लेने के लिए आपको बेक करना ही पड़ेगा। सबस्ट्रेट सिलेक्शन की अगर आप बात करते हैं, ऐसा कोई भी सबस्ट्रेट जो आज जो इंडिया में टेक्नोलॉजी अवेलेबल है 140 डिग्री की, वो 140 डिग्री टेम्परेचर 10 मिनट तक, यानी पीएमटी जिसको बोलते हैं पीक टेम्परेचर, सरफेस का जो टेम्परेचर है 140 डिग्री 10 मिनट तक वो बेयर कर ले, डिफॉर्म ना हो, डिग्रेड ना हो, टूटे नहीं, जले नहीं, श्रिंक बहुत ज्यादा नहीं हो, तो उसके ऊपर पाउडर कोटिंग थ्योरेटिकली पॉसिबल है, अदर देन मेटल। नाउ सेकंड पार्ट इज पाउडर कोटिंग, जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया, कब डेवलपमेंट जो रेवोल्यूशन हुआ वो कब हुआ? जब इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस जो कॉन्सेप्ट है वो डेवलप हुआ, यानी जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिकली किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह पे पाउडर को ट्रांसफर करने में कैपेबल हुए। सो अगर आपका सबस्ट्रेट जो है वो सेल्फ कंडक्टिव हो, मतलब वो खुद चार्ज ले एक्सेप्ट कर सकता हो, या उसके ऊपर आप किसी ऐसे तरीके की कोटिंग यूज करके उसको कंडक्टिव बना दे, तो वो उसके ऊपर, ये दो कंडीशन है, सबस्ट्रेट को आप सबस्ट्रेट सेल्फ कंडक्टिव हो या कंडक्टिव बना लो, दूसरा वो 140 आज की डेट में 140 डिग्री 10 मिनट का टेम्परेचर ले सकता हो, तो उसके ऊपर आप पाउडर कोटिंग कर सकते हैं। फिनिश में ऐसा हो सकता है जो आपको मेटल पे मिल रही हो, इनिशियल सेम फॉर्मुलेशन में आपको फिनिश दूसरे सबस्ट्रेट पे, जैसे एमडीएफ के ऊपर, नेचुरल वुड के ऊपर, या प्लास्टिक सबस्ट्रेट के ऊपर, या इवन जो फैकेड में जो आपका ये क्या बोलते हैं इसको, जो कास्टिंग का जो पार्ट होता है, इवन कास्टिंग के न्यूजीलैंड में कास्टिंग के पार्ट के ऊपर, जो घरों में जो हम पीओपी कास्टिंग लगाते हैं ना, फाइबर कास्टिंग जो पार्ट्स होते हैं, उसके ऊपर पाउडर हो रहा है। ठीक है। चाइना के अंदर एमडीएफ जो है, एमडीएफ के ऊपर पाउडर कोट हो रहा है। सो जो आइकिया जो है, जो यूएसए में सप्लाई कर, चाइना में मैन्युफैक्चर करके यूएसए में सप्लाई ले रहे हैं, वो पूरा का पूरा पाउडर कोट है उनका। सो एमडीएफ का एक बहुत बड़ा मार्केट है, वो नेचुरल वुड के ऊपर कोशिश कर रहे हैं। इंडिया में भी 2-3 मैन्युफैक्चरर हैं जो वुड के ऊपर और एमडीएफ के ऊपर कोशिश कर रहे हैं, बट ये पॉसिबिलिटी है, बट दिस ऑल रिक्वायर्स अ जॉइंट एफर्ट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग साइड एज वेल एज फ्रॉम दैट। एंड यस, एक्सपेरिमेंटल या R&D पॉइंट ऑफ व्यू, या हम इनिशियल प्रोटोटाइप्स की बात करें, यस देयर आर टेक्नोलॉजी अवेलेबल जो 95 डिग्री या 100 डिग्री पे भी क्योरिंग के लिए अवेलेबल है। अभी फिनिशेस उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन वो क्योर हो रही हैं, परफॉर्मेंस दे रही हैं। थैंक यू डॉक्टर। Anyone else want to ask any question? चलो, ਹੁਣ पाउडर कोटिंग ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, बट सर थोड़ा आओ ना आगे, एक बार जोरदार ताली बजाओ सर, पहले जोरदार ताली। एंड आई रिक्वेस्ट जीबी सिंह सर, प्लीज
come on the stage. सर स्वागत करो हमारे ये हमारे गेस्ट हैं आज की डेट में. थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक्स अ लॉट. और नाउ कई बार कॉस्ट बचती है, कई बार टाइम बचता है. सॉरी. थैंक यू मनीष जी, थैंक यू पेंट विजन एंड आप सब लोगों का बहुत बहुत थैंक यू. आज मैं जिस मकाम पे भी हूँ उसमें पंजाब का बहुत बड़ा हाथ है. थैंक यू सो मच. जोरदार तालियां एक बार. ओके,